Hello and welcome back to Anonymous UPSC Aspirant. In this video, I'm going to bust the myths of current affairs, right? We have a lot of preconceived notions, a lot of ideas about how current affairs is supposed to be done for this exam. Hopefully through this video, मैं ये सारी myths, ये सारे जो misconceptions मार्केट में चल रहे हैं, इनको ख़त्म कर दूंगा. तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे. ठीक है? Dealing with current affairs, this is what we're going to talk about. What, how we are going to deal with it, what is current affairs, how current is it, and how we are going to deal with it, ये भी हम देखते हैं इसी वीडियो में. ओके, पहले तो बात करते हैं how current is current. ओके, you need to know everything that is happening in current affairs. Everything means basically the ideas of current affairs आपको पता होने चाहिए. But on the day of prelims या on the day of mains, ऐसा नहीं है कि if event X has happened today, you can read about it any time before prelims. It's not that if event X has happened today, you need to know about event X today itself. Hence, this idea of daily updates, daily current affairs, etc. is non-conducive to the exam, because you need to know everything at one day that has happened the entire year, right? So if you have a compilation, even then you will have a similar idea, and if you read daily you will have a similar idea. रोज अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है ही नहीं. दिस इज द फर्स्ट लेसन. ओके, मूविंग ऑन. बेसिक प्रिंसिपल क्या है व्हेन वी आर डिसाइडिंग कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है एंड हाउ वी हैव टू रीड इट? द बेसिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन. वी विल स्टडी अ सब्जेक्ट और लेट्स से समथिंग कॉल्ड करंट अफेयर्स as per its relevance. Why? Because we have limited time, we have huge syllabus, and not everything is equally scoring. So we will prioritize things and we will consider only those things first that are relevant. हम उतना ही टाइम देंगे करंट अफेयर्स को जितना वो डिजर्व करता है. How much of current affairs is required? ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा? We will see how many questions are coming from current affairs. हम इसी वीडियो में we will see prelims of 2022 as well as some mains papers and mains questions of 2022, and you can make the decision for yourself. All right? Okay. दो scenarios हैं of two current affairs people. This is Mr. A. He is a current affairs lover, right? He reads one newspaper daily, so spends 1 hour per day reading the newspaper, and this is when he has become a pro. You can, from the first day, if you start reading the newspaper, there's no way in hell you can finish it in 1 hour. Okay. Second, after every month he does a monthly magazine, so 12 hours लग जाते हैं इन भाई साहब को monthly magazine खत्म करने में. So for at least 12 months he will read the monthly magazine. So how much time did he spend in current affairs before the prelims? The 1 year before the prelims, he spent 1 day into 300 days. It should actually be 365 days, but I assume that even some days, on Sundays, etc., he will not read. So 300 hours he has spent on reading the newspaper, and then 12 into 12 on monthly magazine. So 144 hours he has spent in reading monthly magazine. So approximately 444. So let's just give it a round figure of 450 hours. Okay, this is Mr. Pragmatic Aspirant who hates current affairs. So what he does is only PT 365 for prelims. 8 hours a day into 2 weeks. Easily he finishes PT 365 after reading the static. आगे चल के ना वीडियो में इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए मान लो ही इज स्पेंडिंग 14 into 8 अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स. तो दोनों में 320 आवर्स का फर्क है इन द रीडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, एंड 320 आवर्स ऑफ स्टडी, नॉट 320 आवर्स टोटल. हम दिन में 8 घंटा पढ़ते हैं, सो 320 आवर्स मीन्स 1.5 months. So this person has spent 1.5 months of study more on current affairs than this person. चाहे वो 1 hour per day हो रहा हो, it is still 1 hour per day of studying ना. ओके, मेंस के लिए दोनों का रिविजन टाइम सेम है, और ये कैसे है ये भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा. ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं, इस ईयर का प्रीलिम्स देखते हैं इन्हीं दोनों लोगों के लिए, एक मिस्टर करंट अफेयर्स लवर और एक करंट अफेयर्स हेटर या मिस्टर प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट, कि इन दोनों ने इस साल के प्रीलिम्स में कैसे फेयर किया. ठीक है, पहला था PT 365 120 आवर्स वाला, दूसरा था न्यूज़पेपर 450 आवर्स वाला. एक्सेप्ट PT 365 में एक एक्सेप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इकोनॉमी के लिए बंदा सिर्फ मृणाल नोट्स पढ़ता है. ऑलराइट, PT 365 भी नहीं पढ़ता इकोनॉमी की, बाकी सारी PT 365 ये बंदा फुली पढ़ता है, न्यूज़पेपर को ये आदमी टच भी नहीं करता. ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी सिर्फ प्रीलिम्स की बात हो रही है, आगे मेंस की डिटेल में बात होगी.
ये इस साल का प्रीलिम्स का पेपर है, आई विल गो ओवर इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विद यू। इस पेज पे देयर इज नो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। इस पेज पे ऑल्सो देयर इज ओनली वन करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो ये है इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो स्टैटिक, बट हम मान लेते हैं ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो, ये मृणाल सर के नोट्स हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर रिलेटेड टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इशू ऑफ केएन एनर्जी। अगर आपने ये पढ़ा है, आपको इजीली उस क्वेश्चन का आंसर समझ आ जाएगा, आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। ओके, इस पेज पे अगेन देयर इज नो करंट अफेयर्स क्वेश्चन। कैसे मैं कह रहा हूँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है, ठीक है। तो ये मत कह देना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज में था तो ये क्वेश्चन आ गया, भाई ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, एंड ये आपको वैसे भी आना चाहिए क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रीवियस ईयर भी है। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर ये न्यूज में था या नहीं, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी उतना ही स्टैटिक है जैसे पिछला क्वेश्चन था। इस पेज पे भी कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है। इस पेज पे सिर्फ एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। इस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये मृणाल सर के नोट्स हैं, ये रहा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। जिस बंदे ने न्यूज़पेपर पढ़ा और जिस बंदे ने सिर्फ पीटी 65 पढ़ा, अभी तक उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं आया है, ठीक है। बट रिमेंबर ही हैड 320 आवर्स मोर, तो स्टैटिक में वो कहीं आगे है फ्रॉम द करंट अफेयर्स लवर। ओके, मूविंग ऑन। इस यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो दिस इज वन क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर से आया है, ठीक है, जो शायद आप न्यूज़पेपर से कर लेते थे। तो अब करंट अफेयर्स लवर को +2 मार्क्स का एडवांटेज हो गया। ये तब अगर उसने न्यूज़पेपर बहुत डिटेल में पढ़ा हो और उसको याद हो। इट इज वेरी अनलाइकली कि ऐसा एक ऑब्सक्योर फैक्ट उसको याद हो, बट बिकॉज ही इज अ करंट अफेयर्स लवर, मैं मान लेता हूं कि उस करंट अफेयर्स लवर को ये बिल्कुल अच्छे से याद है। यहाँ पे दो और क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के इस पेज पे, एक लेवांत और एक बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। वैसे तो ये करंट अफेयर्स नहीं है कहीं से भी, ये भी करंट अफेयर्स नहीं है कहीं से भी। अगर आपने एक बार भी वर्ल्ड मैपिंग करी हो तो आपको आता होगा। बट बहुत लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये भी पूछा था कि क्या पीटी 65 से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बताना भी उनको ज़रूरी है। ये है पीटी 65 2022 का ही है, आईआर का। ये रहा लेवांत, ठीक है, क्लियर कट बता रखा है लेवांत ये है, और यहाँ लिख रखा है मेडिटेरेनियन सी, ओ सॉरी अबाउट दिस, यहाँ लिख रखा है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, लेवांत भी लिख रखा है। सो दिस क्वेश्चन वाज सॉल्वेबल। अच्छा, अब ये देखो, ये भी पीटी 65 है, अगला एक पेज का स्क्रीनशॉट है। ये रहा अफगानिस्तान, बिकॉज तालिबान है टुक ओवर, तो इट वाज इन न्यूज़। ये देखो, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पे दी हुई है, मैप बना हुआ है, ठीक है। पीटी 65 जो पढ़ता है, जो प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट है, वो सिर्फ पीटी 65 पढ़ता है, बट इसको अच्छे से पढ़ता है, इसको स्किम नहीं करता, इसकी सारी चीजें सारे पॉइंट्स ढंग से पढ़ता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इस पेज पे अभी तक और कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस वेब 3.0 क्वेश्चन, ठीक है। वेब 3.0 का क्वेश्चन है, बाकी देख लो, देयर इज नो करंट अफेयर्स क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये पीटी 65 का अपडेटेड मटेरियल है, वेब 3.0 लिखा है, आप इसको पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कोई लोग इसे करंट अफेयर्स कह सकते हैं, वैसे ये 2017 से न्यूज़ में है, तो इसे करंट अफेयर्स कहना नहीं चाहिए, किसी भी साइंस एंड टेक की स्टैटिक की बुक में दिया है, बट चलो मैंने मान लिया करंट अफेयर्स। और एक ही है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ये भी करंट अफेयर्स मैंने मान लिया। अदर देन दिस देयर इज नो करंट अफेयर्स क्वेश्चन हियर। चलो, अब ये मृणाल सर के नोट्स हैं, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन सर्विस। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाया हुआ है, इसका आंसर नहीं आएगा पूरा जस्ट बाय रीडिंग दिस, बट जो बंदा सिर्फ 120 आवर्स लगाता है करंट अफेयर्स पे, देन यू कैन अज्यूम कि जब वो स्टैटिक पढ़ता है तो स्टैटिक वो डिटेल में पढ़ता है, डेप्थ में पढ़ता है, एंड ही अंडरस्टैंड्स दीज थिंग्स, ही डजंट मक देम अप, राइट। दूसरी चीज थी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ये रहा एज इट इज लिखा है हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स में। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये चीज मंथली मैगजीन में है, ठीक है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द मंथली मैगजीन, ये पीटी 365 में नहीं था। तो जो करंट अफेयर्स लवर है वो मंथली मैगजीन सारी पढ़ रखा था, तो अब उसको +4 मार्क्स का एडवांटेज हो चुका है, ठीक है। ओके, बाकी ये दोनों अभी तक बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, एक ही क्वेश्चन है इस पेज पे, कोविड-19 पैंडेमिक में वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या फर्क आएगा। ये रहा पीटी 65, ये इसका भी अपडेटेड मटेरियल ही है। यहाँ देखो, ये टेबल बना के बताया हुआ है, अडीनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म, इनएक्टिवेटेड होल वायरस प्लेटफॉर्म एंड अडीनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म, इन तीनों के बारे में। बस पहला चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि कोविड-19 का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड mRNA नहीं है, इट इज एक्चुअली
अडीनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो अभी भी दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं आया। मूविंग ऑन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि शायद करंट अफेयर्स लवर ने गलती से इतना अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा कि उसे ये भी याद रह गया, तो अब वो +6 पे आ गया है। ठीक है, उसे 6 मार्क्स का एडवांटेज है। अब यहाँ पे बात करते हैं WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की। इस पेज पे और कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, प्लीज इसको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मत कहना। यहाँ पे अंडर 2 कोएलिशन है, अंडर 2 कोएलिशन इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये एग्जैक्ट पूछा हुआ है पहले। ओके, अब आ जाओ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। ये क्वेश्चन था, ये देखो, ये भी PT 365 है, ये देखो WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। ठीक है, ओके, आगे पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ऐसे लिया था ताकि यू कैन सी इट इज एक्चुअली PT 365। आगे द एंटायर इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, ओके। अब ये गुची, ये भी मैं मान लेता हूँ कि करंट अफेयर्स लवर ने न्यूज़पेपर से सब कुछ याद रख लिया, बिल्कुल रट के गया है वो न्यूज़पेपर, तो अब वो +8 पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, बायोरॉक टेक्नोलॉजी और मियावाकी मेथड। दोनों ही आप कहने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, बट बायोरॉक टेक्नोलॉजी का अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल है, कब का, 2020 का। आप उनकी वेबसाइट से सर्च कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे दिस इज नॉट माय नेम, कहीं अगर किसी को लगने लगे, ये मेरे फ्रेंड का नाम है जिसने मुझे ये मटेरियल प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे दिया हुआ है। और क्यों विजन वालों ने दिया बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग एंड कोरल लाइफ सिस्टम, और ये कोरल रीफ्स एज इट इज। तो 2020 में भी बायोरॉक टेक्नोलॉजी उनके स्टैटिक मटेरियल में था। एंड जो प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट है वो तो स्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो उसको तो कोई दिक्कत आई नहीं इस क्वेश्चन में। ये रही मियावाकी टेक्निक ऑफ अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। प्रीलिम्स की वीडियो में मैंने गलती से कह दिया था कि ये मृणाल नोट्स में है, ये एक्चुअली PT 365 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट PT 365 से ये उठाया हुआ है। और बस यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्ड एसोसिएशन, बस इतना याद रख लो, मियावाकी फॉर अर्बन फॉरेस्ट्री। आपको एक और चीज बताता हूँ, ऐसी चीजें ना मेंस में भी बहुत काम आती हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड अर्बनाइजेशन जो मेंस में आता है। तो इफ यू कैन रिमेंबर थिंग्स लाइक दिस, तो आप इसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो मेंस में। बट एनीवे, अभी तक और कोई फर्क नहीं आया, +8 पे पहुंच चुका है हमारा करंट अफेयर्स लवर। ऑलराइट, अब ये देखो, अब ये सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नो करंट अफेयर्स क्वेश्चन हियर। ये भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देयर इज नो करंट अफेयर्स क्वेश्चन। बट याद रखो, टाइम डिफरेंशियल बहुत हो चुका है। प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट ने 320 आवर्स ज्यादा स्पेंड किए हैं ऑन स्टैटिक, तो उसे ये क्वेश्चन ज्यादा आते होंगे। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे भी कोई ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे भी कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है इस पेज पे, एक्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑन नॉन फंजिबल टोकन्स। इसे करंट अफेयर्स कह नहीं सकते, ये कंसेप्चुअल है, किसी भी साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में ये अवेलेबल था। और यहाँ देखो, इवन मृणाल सर के नोट्स में इसको समझाया हुआ था, तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा था तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाता। ऑलराइट, अभी यहाँ पर भी कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी पे क्वेश्चन है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब बहुत अनलाइकली है कि ये क्वेश्चन किसी को याद रहे न्यूज़पेपर पढ़ के, क्योंकि वो एक ही बार पढ़ेगा। बट फिर भी करंट अफेयर्स लवर, बिकॉज ही इज अ लवर, उसे 5 क्वेश्चन अब आगे वो हो चुका है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 76 पे पहुंच चुके हैं। पोलर कोड, ये भी मेरे को नहीं मिला किसी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में, आई डोंट नो वेदर इट वाज देयर इन द न्यूज़पेपर और नॉट, बट मैं मान लेता हूँ कि था, तो आप फिर ऐड कर लो। नाउ ही इज 6 क्वेश्चंस अहेड। ठीक है, ऑल राइट, अब यहाँ पे टर्म है ग्रीन वॉशिंग। ओके, ग्रीन वॉशिंग वैसे तो इट्स लाइक समथिंग यू विल अंडरस्टैंड इवन बाय वर्ड ब्रेकडाउन, बट यहाँ देखो, इट वाज गिवन इन वन ऑफ द करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, तो ये तो प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट को भी आता है। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन, यहाँ पे बात करते हैं BDBD एंड दिस रेफ्यूजी कैंप्स इन सोमालिया एंड दिस थिंग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स है, राइट, ये लॉजिक से इजीली सॉल्व किया जा सकता है, तो इसकी एडवांटेज किसी को नहीं है जिसने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है और जिनको इन कंट्रीज की जियोपॉलिटिक्स का आइडिया है, वो कर सकता है। ये वाला है, चलो मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में होगा। आई डिड नॉट हियर और सी अबाउट एनी न्यूज़पेपर में, मुझे नहीं मिला एग्जैक्ट, बट चलो मैं मान लेता हूँ करंट अफेयर्स लवर ने कहीं ना कहीं ढूंढ लिया होगा, तो 7 क्वेश्चन आगे हो चुका है। ठीक है, ऑल राइट, अब यहाँ पे ये कुछ कंट्रीज दी हुई हैं, चैड, गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया, और ये क्यों न्यूज़ में थी, तो ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूँ करंट अफेयर्स लवर को आता होगा, बट प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट को नहीं आता, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द IR PT 365। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें वैसे, ये अगर आप इसके बारे में देखो,
कैटलोनिया स्पेन में है और इसमें इतने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा है कि अगर आपने कभी भी करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एनाटोलिया रीजन ये टर्की में है, ये बात सबको पता होती है। एंड एनीवे दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, एंड सो इज दिस। लाइक इवन इफ यू रेड इट, आपको 2 ऑप्शंस भी आते हैं तो भी मैं नहीं मान सकता कि आपको ये न्यूज़पेपर से याद रह जाए। ऑलराइट, चलो अब आता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला क्वेश्चन। लास्ट ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इन द न्यूज, हर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में दिया हुआ है, तो इट वाज अ गुड पॉइंटर टू नो दिस। तो इससे भी हम नहीं कह सकते कि किसी को एडवांटेज मिला है। ऑलराइट, अब हम 95 96 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो सिर्फ यहाँ से, जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर, ठीक है। इस लाइन को इग्नोर कर दो। अगर आप इस लाइन को इग्नोर कर दोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एंड बाय द वे, इफ दिस इज नॉट अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, राइट, तो आपको सिर्फ अगर रामानुज की फिलॉसफी पता है तो आप ये आंसर दे सकते हो। यू डोंट नीड टू रीड दिस। ओके, सेम थिंग हियर। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। सीधा यहां से पढ़ो तो भी ये क्वेश्चन का सेम ही आंसर होगा, राइट। और मैं आपको करंट अफेयर्स में दिखा भी देता हूं। पहले तो ये नितिन सिंघानिया है, यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है रामानुज के व्यू के बारे में। अगर आपने स्टैटिक ढंग से पढ़ा है या प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट ने स्टैटिक ढंग से पढ़ा है तो उसको इसका आंसर पता होगा विदाउट इवन रीडिंग करंट अफेयर्स। और पीटी 365 के अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल में भी ये दिया हुआ था। ये देखो, सेंट रामानुजाचार्य के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, ठीक है, और उनकी क्या फिलॉसफी थी ये भी बताया हुआ है। एंड यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, ये लास्ट 4 चीजें रह गई, इनमें से कुछ भी करंट अफेयर से नहीं है। तो क्या वर्डिक्ट निकला? वर्डिक्ट ये निकला कि जिसने पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा, 320 घंटे ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ा और मंथली मैगजीन्स पढ़ी, उसे सिर्फ 8 क्वेश्चन ज्यादा आते थे, ठीक है। ये गैप ना कुछ भी नहीं है। लाइक 300 आवर्स 1.5 मंथ्स फॉर 8 क्वेश्चंस। एंड जिसने न्यूज़पेपर आज तक पढ़ा है ना, उसे अंदर से ये बात पता होगी कि इन 8 क्वेश्चंस में से भी नो मैटर हाउ गुड यू आर एट न्यूज़पेपर रीडिंग, यू कैन ओनली सॉल्व 4, राइट। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, दे वर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत ऑब्सक्योर चीजें थी वो, राइट। तो इफ यू आर ओनली रिमेंबरिंग 4 आफ्टर 1.5 मंथ्स ऑफ मोर स्टडी, कांट वी प्रायोरिटाइज दिस एंड पुट दिस इनटू स्टैटिक। हमने पूरा प्रीलिम्स का पेपर देखा, हमने हार्डली 20 क्वेश्चंस भी डिस्कस नहीं किए। इसका मतलब 80 क्वेश्चंस तो स्टैटिक से आ रहे हैं ना। टाइम वहां इन्वेस्ट ना करें। स्टैटिक आपको ईयर ऑन ईयर हेल्प करेगा। आप इस अटेम्प्ट में पढ़ोगे, मान लो गलती से आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ा तो आपको फिर से हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स नहीं करेगा, राइट। वर्डिक्ट क्या है? पीटी 365 बहुत यूजफुल है, ये हमने देख लिया, इसके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी बात है यार, वी कैन नॉट रिमेंबर मोर देन दिस। इवन इफ यू आर अ करंट अफेयर्स लवर, इट डज नॉट मीन यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। आप कितना भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको याद थोड़ी रह जाएगा सब कुछ। एंड इवन पीटी 365 को अगर आप खोल के देखोगे ना, इट इज मोस्टली स्टैटिक। उसमें भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा दी हुई होती है, बिकॉज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ही आती है प्रीलिम्स में। ओके, सो आइडिया हियर इज फोकस ऑन स्टैटिक। 80% ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिक। स्टैटिक पढ़ो और करंट अफेयर्स लवर मत बनो। 120 आवर्स में पीटी 365 करके आपका ठीक ठाक सा काम चल जाएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है यूज द करंट अफेयर्स एज अ गाइड। जैसे रामानुज, सेंट रामानुज के बारे में करंट अफेयर्स में लिखा आया, तो उस स्टैटिक पार्ट को थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लो, बट स्टैटिक को अच्छे से पढ़ो। इसे पढ़ने से पहले कभी पीटी 365 मत पढ़ना, ताकि आपका टाइम और बचे, स्टैटिक चीजें आपको पहले से आती हूँ, राइट। अब बात करते हैं मेंस के लिए। आधे लोगों ने तो नेगेटिव कमेंट्स अभी तक ही लिख दिए होंगे कि तू मेंस में फेल ही इसलिए हुआ है बिकॉज तूने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, बिकॉज तुझे ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, इट इज सो इंपॉर्टेंट। तो इस बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शनल होता है सबसे स्कोरिंग पेपर ऑफ द मेंस। मैंने स्कोरिंग के ऑर्डर में ही लिखे हैं ये एग्जैक्ट पेपर्स, इसी ऑर्डर में आप देख लेना, टॉपर्स के इसी ऑर्डर में मार्क्स आते हैं, मेरे भी इसी ऑर्डर में मार्क्स आए हैं। ऑप्शनल इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर। मेरे ऑप्शनल में एटलीस्ट 0 रोल है करंट अफेयर्स का, और है भी तो वो न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन से मेट नहीं हो सकता, थोड़े जर्नल्स या स्टडीज पढ़नी पड़ती हैं। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो यहाँ 0। एसए में भी 0 रोल है और एथिक्स में भी 0 रोल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार इसमें तो न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स हम यूज कर सकते हैं, है ना। बात बिल्कुल सही है, न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो,
एंड न्यूज़पेपर मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं आगे इस बारे में बात करूंगा, बट रादर देन दिस ऐसा बेटर नहीं होगा कि आप वो कोचिंग के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो जिसमें डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, लाइक डायरेक्टली एग्जाम्पल्स आर गिवन। आप एथिक्स का एक एग्जाम्पल का डॉक्यूमेंट आता है, उसमें ऐसे होता है ऑब्जेक्टिविटी ये 4 एग्जाम्पल्स, इम्पार्शियलिटी ये 4 एग्जाम्पल्स। जैसे मुझे अभी भी याद है कि इम्पार्शियलिटी में DN रवि साहब का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हु इज अ ब्यूरोक्रेट हु हैज वर्कड इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइक नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। तो इम्पार्शियलिटी के लिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, DN रवि साहब का एग्जाम्पल दो, राइट। तो अभी तक ये जो 1000 मार्क्स मोस्ट स्कोरिंग है, इनमें डायरेक्टली करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर के इंटेंजिबल रोल्स हैं, मे बी उससे हार्डली 10 मार्क्स का फर्क आएगा, उससे ज्यादा नहीं। जीएस में भी बात कर लेते हैं 3 पेपर्स की। GS1 है, GS1 में आप देख लो हिस्ट्री में तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स से नहीं आना क्वेश्चन, राइट, एंड सोसाइटी में भी 99.9% नहीं आना। ज्योग्राफी में ठीक है थोड़ा बहुत आ सकता है, तो हार्डली 50 मार्क्स, 50 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ बट चलो 50 मार्क्स, तो ये 1000 और GS1 के 200, 1200 नंबर दो, 0 करंट अफेयर्स बेस्ड है मेंस में, ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए विद माय ऑप्शनल। जिसका ऑप्शनल PSIR वगैरह है वो उनके लिए मैं नहीं कमेंट कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं GS2 और GS3। जो लोगों को लगता है कि बस यहाँ पे अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो हम तो मर ही जाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ये 500 नंबर और ये 50 नंबर GS1 के, सिर्फ 550 मार्क्स रह गए ना मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स से हो सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब इस साल का GS3 का पेपर देख लेते हैं, ठीक है, सबसे डायनेमिक पेपर GS3 के देखते हैं और देखते हैं कितना करंट अफेयर्स इसमें यूज हो रहा है। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करके पढ़ लेना इफ यू हैव नॉट सीन द पेपर येट। इसमें एब्सोल्युटली कोई करंट अफेयर्स का रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, यू कैन राइट दिस कंप्लीटली विदाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इजिली यू कैन राइट विदाउट करंट अफेयर्स, कोई भी स्टैटिक बुक अच्छे से पढ़ो, लिख सकते हो। What are the major challenges of PDS in India? How can it be made effective and transparent? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो भी लिख लो, और इवन इन द मेन सिलेबस डायरेक्टली लिखा है इश्यूज रिगार्डिंग PDS, तो इसमें भी करंट अफेयर्स नहीं चाहिए। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, डायरेक्टली मेंस में लिखा है सिलेबस में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इसमें भी नहीं चाहिए। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस, व्हाट आर दोज चैलेंजेस, व्हाट आर द स्टेप्स अहेड टेकन टू बी टेकन टू मीट देम, ठीक है। मे बी न्यूज़पेपर कैन हेल्प यू एंड विल टॉक अबाउट दैट, बट ओवरऑल आप फिर भी लिख सकते हो। ये सेल्यूलोज डिकम्पोजिशन पे क्वेश्चन है, नो वेयर अ न्यूज़पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू, वैसे ही काफी टफ है, तो अभी तक न्यूज़पेपर का कोई डायरेक्ट या करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन हमने नहीं देखा, ठीक है। अब आते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग पे, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन के बारे में। एन अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डिस्कस रीसेंट एग्जाम्पल्स। यहां मैं मान सकता हूँ न्यूज़पेपर का कुछ रोल था, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नो नीड ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। व्हाट आर मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल खोलना, ये आंसर भी एज इट इज दिया है, ये आंसर भी एज इट इज दिया है सिक्योरिटी के वैल्यू एडेड मटेरियल में। इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, नो नीड ऑफ करंट अफेयर्स फॉर दिस, ठीक है। करंट अफेयर्स से आपका ओपिनियन बन सकता है अबाउट इकोनॉमी न्यूज़पेपर से, उस बारे में बात करेंगे। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बात हुई थी, ये शंकर IAS का स्क्रीनशॉट है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग आगे डिटेल में दिया हुआ है, और ये एक्चुअली PT 365 है, ठीक है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है और क्लाउड बर्स्ट कैसे होते हैं, एंड इवन ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ देखो रीसेंट इंस्टेंस ये थे, ऑलराइट। एंड जैसे मैं आपको कह रहा था, इवन PT 365 इज मोस्टली स्टैटिक। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, हाउ डज इट हैपन, ये आप स्टैटिक ज्योग्राफी में भी तो पढ़ सकते थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाउड बर्स्ट, क्या ये करंट अफेयर्स है? नहीं, ये भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, बस ये करंट अफेयर्स है कि अभी रिसेंटली एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, सो इट इज जस्ट अ गाइड। एंड PT 365 से मेंस के आंसर्स भी लिखे जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, कैन इंडिया मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, नो नीड ऑफ करंट अफेयर्स। आपको अगर बस पता है पंचामृता प्रिंसिपल्स और आप मेंस देने जाओगे तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। What are the main bottlenecks in upstream and downstream processing of agriculture products in India as it is previous year repeat, integrated farming system as it is previous year repeat। ये देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं एंड व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस मिशन, ठीक है, इस बारे में भी बात करते हैं। प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट स्टैटिक, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क स्टैटिक, व्हाट अप्रोचेस वर अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन्स। एक टेबल पढ़ा था हमने अभी PT 365 में जिसमें दिया हुआ था स्पुतनिक 5,
कोविशील्ड, कोवैक्सिन, एग्जैक्ट सेम आंसर यहाँ लिखना है। जो प्री में पूछा सेम मेंस में दोबारा पूछ लिया। तो PT 365 से ये आंसर भी लिखा जा सकता था। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बच गया, ये भी PT 365 है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। अगर आप ये पेज एग्जैक्ट खोल लोगे 2022 PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो अगर आप पेज नंबर 39 देखोगे ना, तो उसमें आगे इट इज इवन कंपेयर्ड विद प्रीवियस मिशन ऑफ नासा एंड दिखाया गया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैसे बेटर है। और यहाँ पे देखो मिशन गोल्स भी दिए हुए हैं। तो PT 365 अच्छे से पढ़ने से मेंस के आंसर लिखे जा सकते हैं। ऑलराइट, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, क्योटो प्रोटोकॉल के कंटेक्स्ट में ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कम होंगी ये बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल शंकर में डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। कोस्टल इरोजन नॉट करंट अफेयर्स। साइबर सिक्योरिटी सिलेबस का पार्ट है, किसी भी विजन की कंपाइलेशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ लो, उससे आपका ये काम हो जाएगा। यू डोंट नीड करंट अफेयर्स फॉर राइटिंग दिस। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने मेन आंसर बिल्डिंग वाली वीडियो में दिखाया ही था। ठीक है, GS2 में अभी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो में, उसका पेपर भी डिस्कस करने लगा। आप खुद करना, IR का मेंस 365 उठाना और क्वेश्चंस देखना। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मेंस 365 उठाना और लक्ष्मीकांत उठाना और क्वेश्चंस देखना। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली हो जाएगा। राइट, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फाइनल वर्डिक्ट ये है भाई, स्टैटिक जिंदाबाद। बट स्टैटिक को पढ़ो डेप्थ में। कैसे पढ़ते हैं स्टैटिक डेप्थ में, मैंने बताया था बायोफ्यूल्स की वीडियो में, ये मैंने बताया था जब मैंने DNA RNA पढ़ाया था साइंस एंड टेक में। आप उसको डेप्थ में पढ़ लो। राइट, और फिर आप PT 365 और मेंस 365 पे जाओ। जैसे क्लाउड बर्स्ट की अभी बात हो रही थी, आप क्लाउड बर्स्ट अपने स्टैटिक में पहले पढ़ लो, देन करंट अफेयर्स विल एक्ट एज अ गाइड। आपको बस बता देगा कि यार इस बार क्लाउड बर्स्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और रिवाइज कर लेना। बट करंट अफेयर्स से आप कंटेंट नहीं उठा सकते। और जो टाइम बचाओगे ना, जो 350 घंटे आपने ऑलमोस्ट बचा लिए, उनको लगाओ ऑप्शनल में। ऑप्शनल में ना एक एक बुक पढ़ने का बहुत रिवॉर्ड है। एथिक्स में 2-2 4-4 टेस्ट और लिखने का बहुत रिवॉर्ड है। एसए में प्रैक्टिस करने का बहुत रिवॉर्ड है। यहाँ कोई रिवॉर्ड नहीं है। अब बात करते हैं PT 365 कैसे पढ़नी होती है। 2023 का अगर अटेम्प्ट दे रहे हो तो मैं कहूँगा सारी PT 365 2023 की तो पढ़ो ही, साथ में 2022 की साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की PT 365 पढ़ लो, साथ में जो अपडेटेड मटेरियल आता है वो भी पढ़ लो। ठीक है, 2 हफ्ते का ही काम है ये, इससे ज़्यादा। अगर 2 हफ्ते का काम कब है, यू कैन डू दिस इन 2 वीक्स इफ़ यू नो स्टैटिक इन डिटेल। स्टैटिक आता हो 2 हफ्ते में ये काम हो जाएगा। थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर वाले पे, इनमें सिर्फ टॉपिक्स देख सकते हो, लेकिन बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट होते ही हैं। नेवर एवर एवर ट्राई एंड रीड करंट अफेयर्स कंपाइलेशन विदाउट हैविंग स्टैटिक नॉलेज। ईयरली की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मंथली की क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज ईयर एंड में अगर आप ये कंपाइलेशन पढ़ोगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ईयर एंड तक यू विल हैव गेन्ड द रिक्विजिट स्टैटिक नॉलेज टू अब्सॉर्ब देम क्विकली। मंथ के एंड में हो सकता है आपका वो सब्जेक्ट पूरा ना हुआ हो, तो आप उसका करंट अफेयर्स कैसे पढ़ सकते हो। राइट, न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जिसको मैं तब से मतलब गालियां दे रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी गुड टूल। प्री के लिए तो देखो इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज नहीं याद रखा जा सकता। हमने देख लिया जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत टफ थे, बहुत ऑब्सक्योर थे। राइट, आई कैन नॉट स्पेंड 300 आवर्स फॉर 4 क्वेश्चंस। राइट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट मेंस के लिए एडिटोरियल पढ़ के आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती है। ठीक है, आपके ओपिनियंस बिल्ड होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, इसका फ़ायदा है। तो क्या करो, दिन के एंड में व्हेन यू आर टायर्ड, देन जस्ट रीड एडिटोरियल्स। रीड, नो नोट्स, नो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट रीड। सबकॉन्शियस ब्रेन में जाने दो। हार्डली आपको स्पेंड करने हैं 15 मिनट्स। सारे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने, रीड एनी 2। इंडियन एक्सप्रेस है तो एक्सप्लेन पढ़ लो बस, एंड मूव ऑन। थोड़ा आपको आइडिया लेता रहे, आपका थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव बिल्ड होता रहे, कुछ मेजर मिस ना हो। 15 मिनट, दैट्स इट। ठीक है, मंथली मैगजीन्स के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, दे आर वेरी गुड। बट जैसे मैंने बात कहा कि आप मान लो आपने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैन, फेब, मार्च, अब मार्च तक आते आते आपका सिर्फ पॉलिटी कवर हुआ है, तो आप मार्च में कैसे पढ़ लोगे मार्च की मंथली मैगजीन। इसमें तो सारे सब्जेक्ट्स होंगे। somebody who has done like given 2 attempts 3 attempts, उनका सारा like static is now complete, तब वो मंथली मैगजीन पे जा सकता है। दे आर वेरी गुड, इनमें आपको ज़्यादा फायदा होगा रिलेटिव टू PT 365, बट दे आर नॉट मैनेजेबल एट द एंड एंड दे आर नॉट मैनेजेबल इन द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑल्सो। एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आपके पास 1200 पेज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होता है रिवाइज करने के लिए, बट इफ़ यू कैन डू इट तो आप कर सकते हैं। राइट, ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, सो आई विल स्टॉप हियर।
Thank you for watching. I hope you found this helpful. See you in the next one.